Welcome to an academy. My name is Ashish, and I welcome you all to one more session on revision of DILR for CAT 2021. Guys, this is my brief introduction. Give me a second. This is my brief introduction. I'm an next-time faculty. My overall experience is more than 9 years. Starting from 2017, I have always produced a student who scores more than 99.9 plus percentile. चलो guys. आपको कुछ भी बोलना है, do drop your messages in the comment box. वेलकम विनीत, तान्या एंड अंशी. गुड मॉर्निंग यार, बहुत सुबह से उठ गए आप लोग. चलो, तो सिंस दिस इज अ रिवीजन सेशन, फटाफट पहले स्टार्ट करते हैं गाइस. वी हैव स्टार्टेड मल्टीपल बैचेस ऑन गुड मॉर्निंग विनीत. वी हैव स्टार्टेड मल्टीपल बैचेस ऑन 22nd of September. एक है क्रैश कोर्स फॉर कैट एंड दूसरा है क्या कैट एंड ओमेट्स फॉर 2022. वेलकम तान्या. Speaking of batches के लिए you need to take subscription. Speaking of subscription, the prices are very nominal. 6 months का 16,400 plus you are getting a month extra. 18 months का you have 28,550 plus you are getting 2 months extra, and 32,800 for 2 years, and you are getting 4 months extra. As of now, we are having this special price week where prices are slashed by further 10%. Yes, in some 10% discount milta tha standard, but in special price week, the prices are slashed by further 10%. So 20% overall discount hai. Guys, if you want personalized stuff, आपको Iconic लेना पड़ेगा. Iconic subscription. This is a product where we are offering 1:1. Welcome देखना. Where we are offering 1:1 doubts solving, 1:1 concept discussion, and 1:1 mentorship by top B school graduates, and everything at your convenience. Awesome. Moving ahead, combat तो आप लोगों को देना ही है, ठीक है. Combat is something जो आपको हर संडे देना है. गुड मॉर्निंग लेखना. गुड मॉर्निंग बक्की. बक्की आपका नाम क्या हो गया, ओरिजिनल नाम? ठीक है, चलो. Do let me know वैसे. If you score some good marks in subscription in combat, you get awesome discounts in subscription. Come on, guys. As you can see, there is no green background. I am not at my place again. Not at my place again. मैंने आपने कल शाम में पूछा था, do we have a class? ये पूछा था ना आपने. This is the reason here. I'm not at my place. ठीक है. So we'll have to check for a couple of days. Guys, we are pushing this specific subscription, 6 महीने का subscription. We are specifically pushing it for 2021 preparation in last minutes. कैट और ओमेट्स दोनों भी कवर हो जाते हैं. मेंटोर मिल जाता है आपको, मॉक मिल जाता है, डाउट सेशन मिल जाता है, क्लासेस मिल जाते हैं, और प्रोफाइल बिल्डिंग में हेल्प मिल जाती है. एवरीथिंग ठीक है. सो यू कैन चेक दिस आउट. चलो, लेट्स मूव अहेड. और रिवीजन सेशन है, तो वी आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, प्रीवियसली सॉल्व्ड क्वेश्चंस. कल हम लोगों ने ये सॉल्व किया था क्या? कल भी दो सेशन हुए थे, ये सॉल्व किया था. विनीत कल थे ना आप शायद? चलो ट्राई करो फिर. अटेम्प्ट द क्वेश्चन. चलो ट्राई करो, आ जाओ. नहीं, वैसे भी के लिए होमवर्क दिया था शायद. चलो ट्राई करो. कितना टाइम था इसके लिए? कितना टाइम सफिशिएंट रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? 5 minutes. ओके, चलो स्टार्टिंग विद नॉट 5 but 7 minutes. चलो गाइस, थिंक ऑफ इट. उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन में. And I have one more question to everybody those who are attempting. एक क्वेश्चन तो आपके सामने है, एक क्वेश्चन मेरा ये भी है आपसे, ठीक है.
What was the score of Team India? What is the score under given conditions? Yes, of Team India under given conditions. Welcome, Amisha. Good morning, boy. Welcome, Lakshmi. आपके जो भी आंसर्स आ रहे हैं ना पोल में मार्क तो कर ही दो. Poll में I have punched the answer of first question. You can also drop your answers in the comment box. In fact, I do insist. Answer to the 7th B. I do insist कि उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दो. All of you got answers wrong. Okay. So, guys, shall we solve the set? One of the students is saying, let's solve the set. ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी एक ने आंसर दिया हो. अच्छा, ड्रॉप मैसेज गाइस. Shall we solve the set? Yeah, you need some more time. Okay, I believe the boy is right. We need to solve the set. अच्छा, केवल दो लोगों ने ही आंसर दिया है मेरे को.
लक्ष्मी, चलो विल सॉल्व यार, आ जाओ। पे अटेंशन बॉयज, how many of you are attempting this? एक बार ये भी बता दो कोई अटेम्प्ट कर रहा था अभी कि नहीं। आई बिलीव 2 लोग तो कर रहे थे एटलीस्ट, क्योंकि 2 लोगों ने मार्क किया है। सॉल्व किया जाए ना विनीत, अंशी, ओ अंशी वेलकम यार, सॉल्व किया जाए ना, चलो। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन आपसे ये रहेगा कि आप फ्यूचर में जब भी प्रैक्टिस करो ना, तो स्पेंड एम्पल टाइम ओवर एनी क्वेश्चन। अगर आप एम्पल टाइम स्पेंड नहीं करोगे थिंकिंग ओवर द पॉसिबिलिटीज, ग्रोथ स्लो होगा बेटा, ठीक है। दिस इज माय ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट आई फील। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस इट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा गिवन। एक है ये टेबल, दूसरा है पाई चार्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेटा। चलो लेट मी चेक दिस आउट। 3 आया आंसर्स, तीनों ने रॉन्ग दिए। करेक्ट आंसर इज बी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेटा। क्या है टेबल में? पहले तो ओनली 5 प्लेयर्स बैटेड ड्यूरिंग द इनिंग्स, मतलब केवल 5 बैट्समैन ने बैटिंग करी, मतलब टोटल रन जो भी होगा would be sum of run of these 5 players, okay. And this table gives the details of percentage of runs scored in fours and sixes by these players। मतलब कोहली ने अपने टोटल रन का कितना परसेंट रन चौके से बनाया, कितना परसेंट रन छक्के से बनाया, ये गिवन है। अपने रन का, ठीक है। धवन ने अपने रन का टोटल कितना परसेंट 4 से बनाया, कितना परसेंट 6 से बनाया, ठीक है। ओवरऑल का नहीं, अपने रन का, करेक्ट। सो इफ धवन हैज स्कोर्ड 100 runs, he has scored 16 runs in fours, मतलब 4 चौके लगाए धवन ने। he has scored 24 runs in sixes, मतलब 4 छक्के भी लगाए थे उसने, ठीक है। आई होप ये टेबल आप लोगों को क्लियर है। Now moving to this pie chart, this is the breakup of क्या है? The pie chart gives the detail of runs scored by 5 batsmen. अच्छा, this is the breakup of runs scored by 5 batsmen in the match. ठीक है। So if there are total 100 runs, Kohli scored 26.4, Dhawan scored 20 runs. So if there are 100 runs, okay, then this is the breakup. ये total run का breakup है, correct. चलो, all other runs scored by each player other than fours and sixes was in equal number of ones and twos। मतलब किसी ने अगर देखो, अगर 100 रन बनाया है किसी ने, तो फोर्स एंड सिक्सेस निकालने के बाद जो रन बचे ना, वो इक्वल नंबर ऑफ सिंगल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ डबल्स। हर प्लेयर ने जितने सिंगल लिए हैं उतने ही डबल लिए हैं। दिस वाज द लास्ट क्राइटेरिया गिवन टू द क्वेश्चन। Now, India's total score was the lowest number which satisfies all these conditions. India's total was the lowest number which satisfies all these equations, ठीक है। अच्छा, इस स्टेटमेंट से आपको क्या आइडिया लग रहा है कि India's total score was lowest number which satisfies all these equations, ठीक है। अब इसको शुरू कहाँ से करना है? क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको गिवन होता है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है आपको इस लाइन से, इंडिया टोटल स्कोर वाज लोएस्ट नंबर व्हिच सैटिस्फाइज ऑल दिस कंडीशंस। मतलब कि इंडिया के टोटल रन्स की देयर इज मोर देन वन पॉसिबिलिटी। इंडिया के टोटल रन्स की देयर इज मोर देन वन पॉसिबिलिटी, एंड इंडिया का टोटल हमें क्या कंसीडर करना है? A value which is lowest number which satisfies all of the given conditions। And what are the conditions? Conditions आपके पास टेबल में है और पाई चार्ट में है, ठीक है। Now, where to start with? lowest possible। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में मिनिमम से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। अब सर यहाँ पे क्या मिनिमम अज्यूम करें?
अब देखो, आप जब टेबल को डिटेल में स्टडी करोगे, ये देखो, ये कोहली का है डेटा, ये कोहली का डेटा है, करेक्ट। कोहली के फोर्स, कोहली के सिक्सेस, ओके। अगर हमें कोहली का, हम यहां से अगर assumption शुरू करें, ठीक है, इससे हमें कोहली में मदद मिलेगी, और कोहली का मिल गया तो फिर कोहली को हम यहाँ पुट करके टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। और टोटल से फिर हम बाकी सबका भी निकाल सकते हैं, और बाकी सबका निकाल के फिर हम वापस इधर आके इंडिविजुअल निकाल सकते हैं। ये एक ब्रॉड सेंस में हो गया। अगर डिटेल्ड में जाए तो देखो कैसे सोचना है, करेक्ट। आप मुझे बताओ, रैना ने 6 मारा है क्या? रैना ने अपने पूरे इनिंग्स में एक भी 6 मारा है? रैना ने या रोहित ने? नहीं। क्यों नहीं मारा है? बिकॉज सिक्सेस से उनके रन कितने हैं? 0%। सिक्सेस से उनके रन कितने हैं? 0%। अच्छा ठीक है, आप स्टार्ट किसी से भी कर सकते थे। हम एग्जांपल लेते हैं कोहली का, क्योंकि सबसे पहले है, और कोहली में भी फोर्स और सिक्सेस में सिक्सेस का। कोहली ने 6 मारा है, कोहली ने 6 मारा है, कोहली ने 6 मारा है क्या? फॉर श्योर मारा है। अब कितना मारा है ये नहीं पता, कितना मारा है ये नहीं पता। सो वी विल स्टार्ट विद एन assumption, क्योंकि यहाँ गिवन है इंडियाज टोटल स्कोर वाज द लोएस्ट नंबर which satisfies all these conditions. We will start with the assumption कि चलो कोहली ने 6 तो मारा है, let us assume कोहली ने एक 6 मारा है, ठीक है। कोहली ने कितना मारा है? कोहली ने 1 6 मारा है, करेक्ट। तो कोहली के 6 से रन कितने हो जाएंगे टोटल? कोहली ने एक 6 मारा है, तो रन स्कोर्ड इन सिक्सेस वुड बी, बाय कोहली, हम कोहली की बात कर रहे हैं, ठीक है। Runs scored in sixes would be 6, and this 6 is 18.18% of the runs scored by Kohli. I can say ना कि 18.18% of Kohli, बोल सकते हैं बेटा, is 6 run, correct। तो कोहली का निकाल सकते हैं हम। कोहली would be how much? 6 into 18.18 upon 100. Yes or no? Check this out. 18.18% निकालो। 18.18% क्या होता है वैसे? 9 2/11 ना, 9 1/11 हो गया ना, तो 1/11 तो 2/11 हो गया ना, तो इसको डायरेक्टली 2/11 लिख देते हैं ना, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं ना 2/11, 1/11। अच्छा 18.18 यानी ऊपर नीचे जाएगा। We know that from our quant, we know that 18.18% is 2/11. I hope you guys do understand this. 2/11 of Kohli is 6. So Kohli is how much? Kohli is how much? 6 into 11/2? 33. बोलो yes sir. So कोहली का टोटल हो जाएगा 33, करेक्ट। अब ये 33 उठा के हम इधर पुट कर सकते हैं, 33 उठा के इधर पुट कर सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? टोटल स्कोर, जैसे 26.4% ऑफ टोटल स्कोर। देखो गाइस, पूरा का पूरा लूप है। 26.4% ऑफ टोटल इक्वल्स हाउ मच? 33, बोल सकते हैं ना। इससे आपको टीम का टोटल मिल जाएगा। व्हाट वुड बी द टोटल ऑफ द टीम? व्हाट वुड बी द टोटल ऑफ द टीम? चलो 33 into 100 upon 26.4, कैलसी यूज कर लो, कैलसी इज अलाउड इन एक्चुअल एग्जामिनेशन, कैलसी यूज कर लो। दिस गिव्स यू 125, लिखना इज सेइंग 125, ठीक है। तो टीम का टोटल कितना हो गया? 125। अब जब टीम का टोटल मिल गया तो बाकी लोगों का भी निकाल सकते हो। धवन का कितना हो जाएगा बेटा? 25। रैना का 8%, 8% इसका कितना हो जाएगा? 4/5 ना, तो ये हो जाएगा 10 रन हो जाएगा, ठीक है। रोहित का 10%, 12.5। ओके, इज दिस पॉसिबल? अभी रोहित का 12.5 है, तो धोनी का भी इंटीजर में आएगा, धोनी का भी इंटीजर में आएगा। धोनी का कितना आ जाएगा बेटा? धोनी का आ जाएगा 44.5। नो, रन्स जो है डेसिमल में पॉसिबल है,
रन्स जो है वो डेसिमल में पॉसिबल है? नहीं। सो सिंस रन्स आर नॉट पॉसिबल इन डेसिमल्स, अब रन्स डेसिमल में पॉसिबल नहीं है, मतलब हमारा क्या रॉन्ग था? 125 पॉसिबल नहीं है। अब वापस बैक ट्रैक करना शुरू करो। 125 पॉसिबल नहीं है, मतलब कोहली का 33 रन पॉसिबल नहीं है। मतलब कोहली का 33 कैसे निकाला था हमने? 6 एक अज्यूम किया था। एक 6 पॉसिबल नहीं है कोहली का। एक 6 पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी? नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी? नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो सब कुछ डबल हो जाएगा ना, जो कुछ भी था हमने किया वो सब डबल हो जाएगा। ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 66, कैलकुलेशन बेस्ड है। ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 250, ये 250 हो गया तो ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा कितना? 89। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अभी सब डेसिमल में आ गए, अभी सब इंटीजर में आ गए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और फिर वापस आप बैक ट्रैक फिर कर सकते हो, यहाँ पर आ सकते हो। यू नो गाइस, आप वापस यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है, जैसे कोहली ने 66 रन बनाए, अभी 2 6, कितने 6 मारे, कितने 4 मारे, आप वापस यहाँ पर आ सकते हो इफ रिक्वायर्ड। कोहली का अपन निकाल रहे। अभी धवन ने कितने रन बनाए? धवन ने बनाए 50 रन। 50 रन का 16% होता है 8 रन। 8 रन उसने 4 से बनाए हैं, मतलब 2 चौके मारे। 24%, ये 12 रन होता है। 12 रन मतलब 2 सिक्सेस मारे धवन ने। आई होप आपको समझ में आ रही है वैल्यूज हमने कहां से निकाला। ये रन वापस धवन के यहां से उठा लिए। ठीक है, और उसका परसेंट निकाल के 4 एंड 6, नंबर ऑफ 4, नंबर ऑफ 6। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एंड आप सबका निकाल सकते हो। क्वेश्चन में है हाउ मेनी रन्स डिड रायना स्कोर इन सिंगल्स? हाउ मेनी रन्स डिड रायना स्कोर इन सिंगल्स? तो रायना की बात करते हैं। रायना ने टोटल कितना रन बनाया है? रायना ने टोटल 20 रन बनाया है। करेक्ट। 20 में 40% रन, मतलब 8 रन उसने बाउंड्री से बनाया है, 4 से, मतलब 2 चौके मारे उसने। बाकी का 12 रन, बाकी का जो रैना का 12 रन है, बाकी का जो 12 रन है उसमें उसने सिंगल्स और डबल्स से बनाया है ना। सिंगल्स एंड डबल्स, इक्वल नंबर ऑफ सिंगल्स एंड डबल्स। जितने सिंगल्स उतने डबल्स ये क्वेश्चन में गिवन है। सो आई कैन से सिंगल से उसने x रन बनाया और डबल से उसने 2x रन बनाया, एंड टोटल 12 runs. This gives me x as 4. So he took 4 singles and he took 4 doubles. He took 4 singles and he took 4 doubles. B was the right answer to the question. How did I get 24.6? कहाँ 24.6 लिखा है छोटू? लक्ष्मी 26.4 है। देख बेटा, कोहली का हमने assumption किया था कोहली has hit 2 sixes। ठीक है, कोहली made 12 runs in sixes, तो कोहली का टोटल रन वुड बी 66। यस और नो, ये assumption किया था। ठीक है, नाउ इस 66 को हमने यहाँ पुट किया। क्यों? कोहली ये टोटल रन का ब्रेकअप है ना, 66 को यहाँ पुट किया। अब ये क्या है? ये देखो, दिस अगर टोटल रन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कोहली हैज मेड 26.4% ऑफ द टोटल रन्स। तो 26.4% ऑफ द टोटल रन्स इज इक्वल टू 66। ये ब्रेकअप यहाँ गिवन है ना। ओके लक्ष्मी, चलो नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द प्लेयर who made the maximum number of boundaries, maximum number of fours। आपको ये निकालना है ना, हमने 2 का निकाल रखा ऑलरेडी। हमने रोहित का आप निकालो। रोहित का जैसे कितना रन है टोटल? रोहित का 25 रन टोटल है। रोहित का 25 रन टोटल है, उसका 10%, सॉरी 25 का 64%। ठीक है, तो 25 का 64% कितना हो जाएगा? 16 रन, तो 4 बाउंड्रीज। यप, अभी धोनी ने 89 रन बनाए हैं। 89 रन का 22% वुड बी 16।
16 नहीं, 20 होगा ना शायद, 1/5 16 25, यस 16 हो जाएगा ना। चेक दिस आउट। और 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा या 20 हो जाएगा, ठीक है 20 हो जाएगा, 16 का तो चांस नहीं है। तो 20 हो गया, तो 5 बाउंड्रीज, ठीक है। एंड कोहली का 36.36, मतलब ये हो गया 24 रन, 24 रन, तो ये 6 बाउंड्रीज, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स किसने बनाया? कोहली ने। मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स किसने मारा? कोहली ने। The total number of runs scored in boundaries, fours and sixes by Indian batsmen are, आपको सिक्सेस भी निकालने पड़ेंगे। आप फोर्स एंड सिक्सेस से कितने रन बनाए इंडियन प्लेयर्स ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, यहाँ 2 सिक्सेस हमने तो निकाला, ये 0 ये 0, और ये कितना है 30, ये 5 सिक्सेस, 20 रन यहाँ, 30 रन यहाँ, और 5 सिक्सेस। तो टोटल कितनी बाउंड्रीज लगी है? फोर्सेस 6 2 8 10 14 19 फोर्स, एंड 2 2 4 5 9 सिक्सेस, 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 प्लस 9 into 6 out of 250 cross 100. This should be the answer, yes or no? This should be the answer, yes or no? जो भी बाउंड्री से रन बने, जो भी सिक्सेस रन बने डिवाइडेड बाय टोटल रन, ठीक है, जो भी आएगा शुड बी द आंसर। चलो आंसर दिस वन, दिस क्वेश्चन का आंसर दो आप, इस क्वेश्चन का आंसर दो आप। चलो आंसर दिस क्वेश्चन। It was a T20 match, that is a match with 20 overs, and each over consisting of 6 balls. If India played all the 20 overs, then how many balls no runs were scored? 19 fours and 9 sixes. It was a T20 match with 20 overs, and each over consists of 6 balls. If India played all the 20 overs, then in how many balls were no runs scored? Shall I answer this? Nope.
नोप्स। देखो टोटल 250 रन बना था बेटा, इजी था ना, टोटल 250 रन बना था। इसमें रन या तो फोर्स से बना है, फोर्स से बना है, या तो सिक्स से, या तो सिंगल से, या तो डबल से। यस और नो? नंबर ऑफ सिंगल्स एंड नंबर ऑफ डबल्स आर सेम, एक्स और एक्स बोल देते हैं। नंबर ऑफ सिंगल्स एंड नंबर ऑफ डबल्स आर सेम, एक्स एंड एक्स बोल देते हैं। फोर से कितना रन बना है छोटू? 19, फोर से 76, सिक्स से कितना बना है? 54, ये कितना हो गया? 130। 130 रन फोर्स एंड सिक्सेस से बना है, बाकी 120 रन सिंगल और डबल से बना है। करेक्ट। अभी देखो एक्स सिंगल एक्स डबल, नंबर ऑफ सिंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल। वेलकम ऋषभ। तो आई कैन से 1 into x plus 2 into x equals 120. This gives me x is how much? 40. ठीक है, तो चलो ये 40 हो गया, x 40 मतलब 40 सिंगल और 40 डबल। 40 सिंगल और 40 डबल नहीं ना, वो x x तो 40 आया ना बेटा, डबल से 80 रन बना, लेकिन कितने डबल्स लिए? 40 डबल्स लिए ना। डबल्स से 80 रन बना, लेकिन लेकिन सिंगल 40 लिए और डबल 40 लिए, वो रन स्कोर्ड है ना। करेक्ट। अब टोटल बॉल कितने फेस कर लिए? चौके में 19, ये 19 बॉल, 19 बॉल पे चौका मारा, ठीक है। और 9 बॉल पे छक्का मारा, 9 बॉल ही है ना, 9 से 9 से 54, ठीक है। एंड 40 सिंगल 40 डबल, टोटल कितने बॉल फेस लगेंगे इसके लिए? इसके लिए टोटल कितने बॉल लगेंगे? 108। तो 108 में 250 रन हो गया। बाकी का 12 बॉल क्या था? बाकी का 12 बॉल क्या था? डॉट। यस, बाकी का 12 बॉल क्या था? डॉट। ठीक है। एम आई क्लियर विद दिस? चलो, shall we move to next set? But total run are 120 through singles and doubles. किसने बोला टोटल रन्स आर 120 थ्रू सिंगल्स एंड डबल्स? हाँ, वन ठीक है, यस, टोटल रन्स है 120 सिंगल्स एंड डबल्स है। करेक्ट। नहीं नहीं, इट इज मेकिंग 80 नहीं बेटा, देखो सिंगल उसने 40 लिए, ये एक्स क्या है? एक्स देखो, उसने सिंगल 40 लिए है, तो 40 सिंगल से 40 रन, और डबल्स भी 40 लिए हैं, तो 40 डबल्स से 80 रन है यहाँ पर। ये रन्स का कॉलम है, चलो वहां पे मैंने 40 लिखा था, ये रन्स का कॉलम है, ठीक है। और वो रन्स बनाने के लिए कितने बॉल्स लिए? यहाँ पर एक्स आया था ना छोटू, एक्स देखो, एक्स आया था ना, एक्स 40 है, 40 सिंगल्स, 40 सिंगल्स एंड 40 डबल्स, 40 सिंगल्स एंड 40 डबल्स। गॉट इट तन्या? चलो ये सारे, ये चौके से रन बनाए 76, छक्के से रन बनाए 54, सिंगल से 40, डबल से 80, एंड देन ये हो गया मेरे नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड, ऐड करके यू गॉट 108। चलो, और शैल वी मूव टू नेक्स्ट सेट? बोले सर। चलो आ जाओ। अच्छा देखो, आपको दो सेट का ऑप्शन देता हूं, एक ये करेंगे या फिर ये करेंगे, बताओ। ये करेंगे, ये मैक्सिमम मिनिमम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, कौन सा करेंगे? या दोनों करें बारी बारी? तो करेंगे तो दोनों, पहले कौन सा करें? चलो बारी बारी, ये पहले यही करते हैं। सेट 9 करना है विनीत को पहले, सेट 8 भी करने वाले हम लोग, सेट 9 भी करने वाले। चलो पहले सेट 8 करते हैं, फिर सेट 9 भी करेंगे, दोनों भी करेंगे, आ जाओ। दोनों दोनों भी करेंगे, हाँ विनीत, मेरा क्वेश्चन ही बेकार था। चलो,
नहीं नहीं, डिसकंटिन्यू नहीं हो जाएगा 9 PM वाला। अभी दो दो तीन दिन प्रीमियर आएगा उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा अरेंजमेंट नहीं है, मेरा सेटअप नहीं है, ठीक है। और आप दीवार पे देखो, पीछे दिख रहा है ये बच्चों का कारनामा, यहाँ बच्चे भी बहुत है। तो 9 PM का डिसकंटिन्यू नहीं होगा, इसलिए मॉर्निंग में 7 AM को क्लास लगाई है। सारे सो रखे हैं बच्चे, सारे बच्चे सो रखे हैं, ठीक है। तो डिसकंटिन्यू नहीं होगा, 2-3 दिन का ब्रेक लगेगा, बट प्रीमियर आएगा आपको उस टाइम पे। मैं रिकॉर्डिंग कर करके भेज दूंगा और वो प्रीमियर आएगा। फिर 3-4 दिन में जब आई विल बी बैक टू माई प्लेस, फिर हम रेगुलर करेंगे उसको। डिसकंटिन्यू नहीं होगा। और अभी उसमें शुरू किया था, शुरू मैक्सिमम मिनिमम शुरू किया था ना, मिनिमम। अच्छा, कंटिन्यू मैक्सिमम मिनिमम तो शुरू किया है। उस वो ना, मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली 29th को रिज्यूम होगा मास्टर बैच का थियरी। अभी अगले 3-4-5 दिन ना हम लोग वो करेंगे उस पे, रिकॉर्डिंग प्रीमियर करने वाले उस टाइम स्लॉट पे। या फिर मैक्सिमम मिनिमम आई कैन कंटिन्यू इन स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास ले सकते हैं, स्पेशल क्लास के लिए बहुत ज्यादा सेटअप की जरूरत नहीं है, वो हम लोग ले सकते हैं। यूट्यूब पे पूरा टाइम स्लॉट भी पैक है, तो स्पेशल क्लास पे ले सकते हैं हम लोग। लेकिन फिर यूट्यूब की प्लेलिस्ट से मिस हो जाएगा, प्रॉब्लम बस इतनी ही है। ओके, चलो, मीनवाइल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बॉयज। आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मैं फिर भी वो करता हूँ क्या। अच्छा, you guys start solving it. I'll start poll in a couple of minutes. Let me start the poll. पोल में अभी कितना टाइम दूं? अब 6 मिनट। चलो 6 मिनट देते हैं। अगर स्टार्ट करना होगा तो उसके पहले सॉल्व करना शुरू कर देंगे, अगर आप लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया तो। अगर आप लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया तो
कम ऑन गाइस, क्या स्टेटस है? So you have roughly 70-80 seconds left. Anybody? Okay. चलो, the time is up. कितने लोगों को डाउट आया या फिर सॉल्व हो गया? लिखो फटाफट, 1 मिनट। डाउट कितने लोगों का है ये लिख दो। नहीं हो रहा है सॉल्व, डाउट हो गया तो इट्स अप्रिशिएटेड, ट्रूली अप्रिशिएटेड। डाउट की बात करते हैं। ऑसम। चलो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, ये तो हम सबको समझ में आ रहा है ना कि सर इस वाले क्वेश्चन में हमें टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, इतना तो समझ में आ रहा है सर। ठीक है, तो चलो टेबल बनाना शुरू करते हैं। और डरने की जरूरत नहीं है इसमें भी ना। देखो, डीएलआर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, लाइक दिस वन आल्सो, सबसे पहले जो डेटा है उसको फिल करो। ठीक है, उसके बाद केसेस बनाओ। सेकंड स्टेप हमेशा यही होता है। और केसेस को एलिमिनेट करो कॉन्ट्राडिक्शन से, हमेशा की तरह यही होता है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था। यस और नो? हमने क्या किया था? डेटा रीड आउट किया। ठीक है, डेटा वहां पे स्ट्रक्चर्ड था ऑलरेडी, टेबल में था, पाई चार्ट में था। हमने डेटा रीड किया, हमने केसेस बनाए और केसेस को एलिमिनेट किया। ब्रॉड सेंस तो यही था ना। यहाँ भी ब्रॉडर सेंस में हम यही काम करेंगे। क्या करेंगे? डेटा को अलाइन करेंगे, केसेस बनाएंगे, केसेस को एलिमिनेट करेंगे। जो बच गया लास्ट में, दैट इज आवर आंसर। देयर कुड बी मोर देन वन पोटेंशियल आंसर्स। यस सर। तो चलो सबसे पहले एक अच्छा सा टेबल बनाते हैं। अच्छा सा टेबल बनाते हैं। इस टेबल में क्या क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए रो, होना चाहिए मंथ्स के लिए, एक होना चाहिए सेल्स के लिए, एक होना चाहिए एक्सपेंस के लिए, और एक होना चाहिए प्रॉफिट के लिए। एक होना चाहिए प्रॉफिट के लिए। कितने मंथ्स है मेरे पास? फर्स्ट 7 मंथ्स है ना। ये हो गया मेरा 1,
ये हो गया 2, ये हो गया मेरा 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये तो हम बनाएंगे सर। ओके, लिख दो मंथ्स, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, एंड यहाँ पर व्हाट डू वी हैव, सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट। सेल्स, एक्सपेंस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है बेटा। आ जाओ, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन का पढ़ना। Atul lost his records for first 7 months. ठीक है, he could recollect following information. क्या क्या information? His average sales for the 7 months was 45,000. आपको कभी भी average given होता है, मतलब क्या given होता है? आपको कभी भी average given होता है, मतलब क्या given होता है? अगर 45,000 का average है sales का, मतलब आपको क्या given है बेटा, बोलो? Average 45,000 है, yes, total sales given होता है ना? Yep. तो 45 इंटू 7 कितना हो गया? 315 हो गया ना? 315 हो गया। तो टोटल सेल्स कितना हो गया मेरा? 315 लिखते हैं, आ जाओ। दिस इज इन थाउजेंड्स। ये वैल्यू किसमें? सारे वैल्यूज इन थाउजेंड्स कर देते हैं, आ जाओ, इन थाउजेंड्स। ऑल ऑफ द वैल्यूज आर इन थाउजेंड्स। हम लोग केवल शुरू के 2 लिखेंगे, या थाउजेंड्स को छोड़ के जितने भी है। चलो, मूविंग अहेड। His hello Gunjan, his average sales was 45,000, which were the same as those in April. अप्रैल के मंथ का सेल्स कितना था बेटा? अप्रैल के मंथ का सेल्स वाज आल्सो 45k. दिस इज गिवन टू बी 45. बोलो यस सर, यस सर, ये तो गिवन है सर। मूविंग अहेड, his highest sales of 52k were in June and lowest were in January. Highest sale of 52 was in June. 52 का sales was highest and it was in June and the lowest was in January. अच्छा guys, इस क्वेश्चन में ये टर्म मेंशन्ड है lowest. आई होप अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे हैं तो वहां मैंने बहुत बार लोवेस्ट और मिनिमम में डिफरेंस बताया है। बोलो यस सर। लोवेस्ट और मिनिमम में डिफरेंस इज वेरी क्रिटिकल, यू नीड टू नो दिस। लोवेस्ट एंड मिनिमम दोनों में कुछ डिफरेंस है, फटाफट बता दो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या दोनों भी सेम है? फ्रॉम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों भी सेम है या दोनों में कुछ डिफरेंस है गाइस? देखो, वो दोनों में डिफरेंस है, टेक्निकल डिफरेंस है। क्या कि देखो, अगर ए बी सी बोल दे, ठीक है, दिस इज 100, दिस इज 50, दिस इज 40, तो सी इज लोएस्ट, यस। सी इज मिनिमम, यस। सी लोएस्ट भी है और मिनिमम भी है, करेक्ट। बट अगर डी को डाल दे विथ 40, अब सी लोएस्ट नहीं है। अ वैल्यू इज सेड टू बी लोएस्ट ओनली इफ इट इज लीस्ट पॉसिबल एंड यूनिक। ये मिनिमम है, यस। Sir, please explain once. That is what I'm doing, Lakshmi. Lakshmisha. What is your complete name? What is your complete name? आपका पूरा नाम नहीं आ रहा है। लक्ष्मीशा, ओके, लक्ष्मीशा। देखो बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट? अब इस वाले केस में इट इज मिनिमम बट नॉट लोएस्ट। लोएस्ट के लिए इट हैज टू बी यूनिक वैल्यू, ओके, इट हैज टू बी यूनिक वैल्यू। हाँ, अगर डी नहीं होता, डी नहीं होता तो यस, सी वाज लोएस्ट एंड सी वाज मिनिमम। C was lowest and C was minimum. Am I clear with this? Yes, sir, you are clear with this. Same goes with highest and maximum. A is highest, yes. A is maximum, yes. अगर मैं D डाल दूं बेटा,
अगर मैं डी डाल दूं विथ 100, ए इज मैक्सिमम, यस, ए इज हाईएस्ट, नो। एम आई क्लियर विद दिस? सो ये जो लोवेस्ट लिख रहा है ना, लोवेस्ट इन जनवरी, गुड मॉर्निंग रजनीश, ये लोवेस्ट इन जनवरी, इसका मतलब क्या है? द लीस्ट वैल्यू इज इन जनवरी एंड इट इज यूनिक। ठीक है, द लीस्ट वैल्यू इज इन जनवरी एंड इट इज unique. It is not going to repeat its value in some other column, yeah, in some other cell. Am I clear with this? Yes sir, you are clear with this. समझा है तो बोलो सर, हैशटैग समझा। ठीक है, and the lowest is in January, lowest is in January, ठीक है, lowest is in January। चलो आगे बढ़ जाते हैं। He also remember, इसलिए मैंने देखो यहाँ एरो डाउन किया है, this is my sign to represent lowest, this is my sign to represent lowest। चलो, he also remembered that his sales in July were 48K। अच्छा, जुलाई में सेल्स कितना बोल रहा है बेटा? जुलाई में सेल्स बोल रहा है 48K, एंड दिस इज द हाईएस्ट सेल्स, जून में उसका हाईएस्ट सेल्स था। ठीक है, वी वांट टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द बेस्ट पॉसिबल वे कि मुझे बार बार देखना ना पड़े टेबल। ठीक है, his highest sales was in July, that was, sorry, he also remembered that his sales in July was 48K and sales of no two months were equal। कोई भी दो मंथ का सेल was not equal। okay, very nice, very nice। चलो अब क्या गिवन है फर्दर, अगर हम रीड आउट करें तो द एवरेज एक्सपेंस, अब हम आगे एक्सपेंस पे, द एवरेज एक्सपेंस इन द गिवन पीरियड वाज 38,000। सुडोकू पजल टाइप बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे सुडोकू पजल टाइप बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सुडोकू जैसा ही होता है the average expense in the given period were 38,000। again average expense given है 38K बेटा, average expense given है 38, which means total given है ना, ये कितना हो गया टोटल? 266 हो गया क्या? यप, तो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 266। बोलो यस सर, यस सर। ओके, मूविंग अहेड। The average expense were 38K, which were same in those of May। So May में कितना था expense? May में expense was 38K। May में expense was 38K। चलो, the highest expense were in June and the lowest which were 31K in January। Highest expense was in June, highest expense was in June and lowest was in January, which was 31K। मैंने बाइनरी लॉजिक पढ़ाया था यूट्यूब पे, अगले दिन ही आ गया अगले दिन ही आ गया। अरे जबरदस्त, टॉपिक्स वही है ना, उसमें से ही आएगा क्वेश्चन। मतलब जो 10-12 टॉपिक है वो तो कोइंसिडेंस था, लेकिन टॉपिक तो लिमिटेड है ना बेटा। चलो ओके, ये 31K मिल गया आपको। Like sales expense were also in multiples of 1,000 and were different for 7 months। तो expense भी सारा का सारा different था। ओके, expense भी सारा का सारा different था, expense भी सारा का सारा different था। ठीक है, though the expense in June and sales in March were same। expense in June and sales in March, expense in June यहाँ पर जो भी है and sales in March, both of these values were same। expense in June and sales in March। His average profit for the given period was same as his profits for the month of January and July। He also remembered that the highest profit was 10,000 and his profit in Feb was 5,000, which was minimum। Feb में profit कितना given है? Feb में profit given है 5K and this is minimum, मतलब और भी values हो सकते हैं। minimum इसको सर्किल कर दिया, और भी values हो सकते हैं। ठीक है, and the highest profit was 10K in June ना, 10K, this is in June, ये highest है, nobody can repeat this value। Correct।
अच्छा, व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट है जनवरी और जुलाई में, यहां पर एवरेज प्रॉफिट है। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? यहां पर एवरेज प्रॉफिट है, यहां पर एवरेज प्रॉफिट है। व्हाट इज दिस एवरेज प्रॉफिट? व्हाट इज दिस एवरेज प्रॉफिट? बताओ गाइस, कैसे निकालोगे आप एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट 15 के कैसे? हाईएस्ट प्रॉफिट 10 के है, हाईएस्ट प्रॉफिट 10 के है, हाईएस्ट प्रॉफिट 10 के है ना, तो एवरेज 15 के कैसे निकलेगा? देखो, एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या निकालना पड़ेगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। यस लिखना, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ। सिंपल सा फॉर्मूला है ना, बहुत बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं, आउट ऑफ द वर्ल्ड तो कुछ पूछते नहीं है वो, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इज नथिंग बट टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ। तो व्हाट इज टोटल प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट तो पता है सर, टोटल सेल्स भी पता है, टोटल एक्सपेंस भी पता है, तो प्रॉफिट यहां से निकल जाएगा ना। ये कितना सर डिफरेंस? 34 प्लस 15 है, 49 का है डिफरेंस। तो 49 इज द टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 7। 7000 इज द एवरेज प्रॉफिट। बोलो यस सर। 7000 इज द एवरेज प्रॉफिट। बोलो यस सर। तो ये एवरेज प्रॉफिट कहां पर है? जैन में भी है, और यही एवरेज प्रॉफिट कहां पर है? जुलाई में भी है। तो यहां पर 7K डाल दो, यहां पर 7K डाल दो। अब जाके हमने क्वेश्चन पूरा रीड कर लिया। एट दिस पॉइंट वी कैन से कि हमने क्वेश्चन अभी रीड किया है। बेटा अभी देखो, हमने सॉल्व करना अभी तक शुरू नहीं किया। हमने सॉल्व करना अभी तक हमने क्या किया? बस क्वेश्चन रीड किया। अभी तक हमने क्या किया? बस क्वेश्चन रीड किया। क्वेश्चन तो रीड हम कर सकते हैं ना, क्वेश्चन रीड करने में कोई दिक्कत? लक्ष्मीशा देखो, टोटल प्रॉफिट बोला, एवरेज प्रॉफिट बोला था ना। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट बेटा? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट वुड बी टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ मंथ्स। करेक्ट, नंबर ऑफ मंथ्स तो मुझे पता है 7 है। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंस। छोटू, टोटल सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंस, 315 माइनस 266। करेक्ट, यहां से 49 मिल गया ना बेटा। हमें पता है ना टोटल सेल्स और टोटल ये। यप सर, पता है सर। क्या बोल रहे हो सर? चलो आ जाओ, अब देखो। अब यहां से करेंगे सॉल्व करना शुरू, ठीक है। तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। आ जाओ, क्या क्या वैल्यूज हम निकाल सकते हैं? क्या क्या वैल्यूज हम निकाल सकते हैं? ठीक है, दिस वुड बी 38, ये निकाल सकते हैं क्या? एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। जून का एक्सपेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल जून का एक्सपेंस निकाल सकते हैं 42, ठीक है। जुलाई का एक्सपेंस निकाल सकते हैं क्या? 41। करेक्ट। अभी देखो ये 42 है, तो ये भी 42 हो जाएगा, सेम है ये दोनों वैल्यूज। ये भी हो जाएगा 42। यस सर। चलो और कुछ निकाल सकते हैं हम? नहीं। बट वी नो कि सेल्स में द लोएस्ट वैल्यू इज 38, सेल्स में हाईएस्ट वैल्यू इज 10, एक्सपेंस में लोएस्ट वैल्यू इज 31, एक्सपेंस में हाईएस्ट वैल्यू इज 42, एंड प्रॉफिट में मिनिमम वैल्यू इज 5। मतलब 5 और भी हो सकता है, 5 और भी हो सकता है। हाईएस्ट वैल्यू इज 10, 10 और वैल्यू नहीं हो सकता। तो प्रॉफिट 5 से 10 के बीच में आएगा। ओके, ओके। अब यहां से क्या करना है? सारे वैल्यूज हम और कुछ फिगर आउट कर सकते हैं टेबल से। सोचो जरा, टेबल से और कुछ फिगर आउट कर सकते हैं। जैन का हो गया, फेब का नहीं निकाल सकते, इससे ज्यादा मार्च का नहीं निकाल सकते, अप्रैल नहीं, मई नहीं। अब इस पॉइंट पे क्या करना है? आपके पास कोई एडिशनल डेटा है? एडिशनल डेटा है आपके पास? नहीं। द ओनली डेटा दैट यू हैव, द ओनली डेटा दैट यू हैव इज सम ऑफ ऑल ऑफ देम इज 315। सम ऑफ ऑल ऑफ देम इज 315। बोलो यस सर। तो बेटा फेब और मे का एडिशन कितना होना चाहिए? आप बताओ। फेब प्लस मे का एडिशन कितना होना चाहिए? फेब प्लस मे का एडिशन कितना होना चाहिए? What is this? 38 and 42 is how much? 80. 80 plus 45 is 125. 125, 177. 177 plus 48 ये हो जाएगा 235, और सॉरी 225। 390 होना चाहिए।
90 होना चाहिए ना फेब प्लस में, बोलो यस सर। ठीक है, अब 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। आई नो कि फेब 52 नहीं हो सकता है, तो फेब को कितना डाल दे 51, तो 51 प्लस ये 39 पॉसिबल है। ठीक है, फेब के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अब आपको केसेस बनाने पड़ेंगे बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, देखो फेब का ये 5 है ना, ठीक है, ये देखो, अब आ जाओ, आगे बढ़ो। ये 51 हो सकता है, ये 50 हो सकता है, 49 हो सकता है, 48 हो सकता है, 47 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, 46 हो सकता है, 40 हम बाद में एलिमिनेट कर देंगे, बट अभी लिखना आपको जरूरी है। कहां तक, 39 तक। 43 हो सकता है, 42 हो सकता है, फेब की बात कर रहे हैं। 41 हो सकता है, 40 हो सकता है, 39 हो सकता है। एंड व्हेन फेब इज 51, ये 39 था, ये 40, ये 41, ये 42, ये 43। ठीक है, ये हो जाएगा 44, ये 45, ये 46, ये 47, ये 48, दिस वुड बी 49। इसमें बहुत सारे केसेस एलिमिनेट होंगे, वी आर गोइंग टू डू दैट। अब चेक करो, फेब 51 हो सकता है क्या फॉर एनी रीजन? नहीं हो सकता ना सर, क्यों नहीं हो सकता फेब 51? क्यों नहीं हो सकता फेब 51? क्योंकि अगर फेब में यहाँ 51 डाल दिया बेटा, यहाँ 51 डाल दिया, तो 5 का प्रॉफिट ये 46 हो जाएगा। 46 पॉसिबल नहीं है, दिस मैक्सिमम कुड बी 41, 41 भी नहीं, दिस मैक्सिमम कुड बी 40। यहाँ पर मैक्सिमम 40 हो सकता है, बोलो यस सर। यहाँ पर मैक्सिमम 40 हो सकता है, क्योंकि 42 हाईएस्ट है, तो 41 भी मेरे पास है। यहाँ पे मैक्सिमम 40 हो सकता है, मतलब ये 45 से ऊपर नहीं जा सकता। तो फेब कैनॉट हैव 51, 50, 49, 48, 47, 46 एंड 45। क्यों नहीं 45? क्योंकि 45 एंड 45 दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। करेक्ट, चलो, कैन इट बी 44? 44 हो सकता है क्या? कैन इट बी 44? पिंक कलर में लिख रहा, कैन इट बी 44? ये 44 लिखा, तो ये 46 हो जाएगा। कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इट लुक्स फाइन एज ऑफ नाउ, इट लुक्स फाइन एज ऑफ नाउ। तो दिस, ये चलता है, ये चलता है, बोलो यस सर। ये चलता है, बोलो यस सर। ठीक है, चलो, एक ये वैल्यू चलती है, हम और भी वैल्यूज चेक करेंगे, हम और भी वैल्यूज चेक करेंगे, आगे भी चेक करेंगे। ठीक है, जो चलता है वो हमने देख लिया पहले, तो चलो 43, 47 चलता है क्या? अगर हमने 43 पुट किया, तो 43 अगर यहाँ पुट किया बेटा, अगर यहाँ पर 43 पुट किया, तो यहाँ 38 हो जाएगा। 38 तो रिपीट हो गया ना, 38 तो रिपीट हो गया, तो 43 नहीं चलता है, दिस इज नॉट वर्किंग। 42 चलता है क्या सर? 42 अगर डाला तो ये 37 हो जाएगा, एंड इट नथिंग कैन बी बिलो 38, नथिंग कैन बी बिलो 38, 38 इज द मिनिमम पॉसिबल, लीस्ट। अच्छा 31 तक है, सॉरी, तो सॉरी, ये चलेगा ना, मैं गलत देख रहा था। 42 चलता है क्या? 42 यहाँ पुट किया, तो यहाँ 48 पुट करना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा। अगेन ये पॉसिबल नहीं है ना, देखो ये पॉसिबल नहीं है, नोबडी कैन हैव 10, नोबडी कैन हैव 10। करेक्ट, सो ये 48 पॉसिबल नहीं है, और ये 48 से ज्यादा मे पॉसिबल नहीं है, मे 48 से ऊपर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर फेब मार्च है सेम, अच्छा फेब मार्च सेम भी है, या ये भी इशू है, ये भी इशू है। अच्छा गाइस, ऑल्सो ऑल्सो देखो, अब हम इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे जब, तो ये इंक्रीज होगा। करेक्ट, ये इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट 10 से ऊपर जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मे कैनॉट बी 49, 50, 51, मे कैनॉट बी 49, मे कैनॉट बी 50, मे कैनॉट बी 51। आई होप यू आर गेटिंग दिस। और 42 तो हो ही नहीं सकता, ये हमने चेक कर लिया। सो डू वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी? मई जुलाई से, मई और जुलाई, हाँ। सो डू वी हैव ओनली, और 48 के ऊपर भी नहीं जा सकता ना, वही बोल रहा मैं, 48 के ऊपर भी नहीं जा सकता। 48 के ऊपर जाएगा तो फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 10 से ज्यादा हो जाएगा। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन सी नाउ, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है विच यू कैन सी।
So there is only one value which satisfies this is there is only one value which satisfies this is ये 44 और ये 46 agreed. ये 44 और ये 46 बाकी सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है agreed. ये 39 हो जाएगा and this would be 8. Am I clear with this? चलो तो अब क्या करेंगे हमने ये तो कर लिया अब हमें क्या निकालना है एक्सपेंस निकालना है एक्सपेंस किसका किसका मार्च और अप्रैल बेटा हम निकाल सकते हैं क्या मार्च और अप्रैल का एक्सपेंस अभी सर उसी मेथड से निकाल सकते हैं बिल्कुल वही काम करना पड़ेगा आपको जो हमने इसके लिए किया सेम काम आपको एक्सपेंस के लिए करना पड़ेगा आप एक्सपेंस के बारे में क्या बोल सकते हैं द सम इज 266 add them up ये कितना हो रहा है 39 31 is how much 70 70 plus this is 108 108 is 150 150 191 191 माइनस करो 266 से 66 plus 9 75 हम क्या बोल सकते हैं मार्च प्लस अप्रैल 75 बोल सकते हैं ना मार्च प्लस अप्रैल इज 75 करेक्ट अगेन और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इस टाइप के यही करना पड़ता है आपको ठीक है चलो what do we have as a limitation for March 42 मैक्सिमम है हाईएस्ट है नहीं हो सकता 41 तो 40 से शुरू करना पड़ेगा और कहां तक जाना पड़ेगा मिनिमम 31 है तो देखो 40 हो सकता है 39 हो सकता है अगेन एलिमिनेट करेंगे हम मुझे दिख रहा है एलिमिनेशन लेकिन मैं अभी पूरा लिख रहा फिर हम एलिमिनेट करेंगे ठीक है 36 35 34 33 and 32 great this would be then 35 this would be then 36 this would be then 37 this would be then 38 this would be 39 this would be 40 this would be 41 this goes 42 this goes 43 चलो अब देखो क्या क्या वैल्यूज नहीं हो सकते और ये 40 हो सकता है क्या नहीं सर 40 नहीं होगा ना सर 40 डाल दिया यहाँ पर 40 डाल दिया तो प्रॉफिट 2 का आएगा मिनिमम प्रॉफिट इज 5 तो यहाँ पर मिनिमम आपको 35 मिनिमम आपको 37 रखना पड़ेगा मिनिमम 37 रखना पड़ेगा तो 40 नहीं पॉसिबल है 39 नहीं पॉसिबल है 38 नहीं पॉसिबल है 37 पॉसिबल है बट 37 यहाँ हो गया तो वापस 38 हो जाएगा अप्रैल में एंड वी ऑलरेडी हैव अ वैल्यू ऑफ 38 तो ये 38 नहीं पॉसिबल ये भी नहीं पॉसिबल है सर ओके 36 39 पॉसिबल है नहीं सर 39 ऑलरेडी है हमारे पास ये भी पॉसिबल नहीं है 35 40 पॉसिबल है 35 40 35 40 पॉसिबल है ये 35 ये 40 तो ये 5 और 7 कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है 5 अपनी वैल्यू रिपीट कर सकता है 5 वाज नॉट लोएस्ट 5 वाज मिनिमम 5 अपनी वैल्यू रिपीट कर सकता था ठीक है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तो दिस इज वन पॉसिबिलिटी 35 40 इज वन पॉसिबिलिटी हम आगे की चेक करेंगे 34 41 34 41 41 ऑलरेडी है सर ये पॉसिबल नहीं है 33 42 42 ऑलरेडी है सर पॉसिबल नहीं है और 43 नहीं हो सकता क्योंकि 43 हाईएस्ट 42 इज द हाईएस्ट सो ये भी पॉसिबल नहीं है the only possibilities are sir 35 and 40 being 7 and 5 am I clear with this समझ रहा बेटा एक बार आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक बार आप खुद से भी ट्राई कर लेना ठीक है एक बार आप खुद से भी इस सेट को ट्राई कर लेना खुद से चलो वेलकम मिस्टर ऑसम shall we move to next set मैंने 46 मार्क किया था मैंने 46 मार्क किया था क्या माय बैड फिर कितना है 44 है माय बैड गलती से हो गया होगा चलो माय बैड चलो so try this at most how many of the read the question carefully maximum minimum का question है a sort of
चलो आंसर दिस. At most, how many business schools surveyed satisfied the minimum basic requirement in each of the five parameters? सर जी मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं किया है. ओके ओके, लक्ष्मी शाह ने नहीं किया है. देखो और ठीक है, इस एक क्वेश्चन में मतलब 4 क्वेश्चन है इस सेट में ना, 9A 9B 9C 9D. ठीक है, इन चारों में जितने भी कंसेप्ट है इसके वो सारे कवर हो जाएंगे. ठीक है, आ जाओ डिस्कस करते हैं. बाकी के बच्चे गाइस, बाकी के बच्चे व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? कर रहे हो विनीत? ठीक है कर लो बेटा, 1-2 मिनट टाइम है आपके पास. लक्ष्मी शाह ध्यान दो, हो जाएगा क्लियर बेटा, डोंट वरी. इट्स नॉट 47, थोड़ा सा एरर है आपके कैलकुलेशन में. ठीक है, देखो इसको ना, दिस इज फेमसली नोन एज, इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच इज फेमसली नोन एज चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन. फेमसली नोन एज. ठीक है, चॉकलेट क्यों? क्योंकि समझने में इजी होता है. ठीक है, हम क्या करेंगे ना, हम प्लेसमेंट्स को बोलेंगे डेयरी मिल्क. आपकी जब अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी तो आप इनको इनके नाम से भी सॉल्व कर सकते हो. फैकल्टी को बोलेंगे मंच, इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलेंगे पर्क, कोर्स कंटेंट को बोलेंगे 5 स्टार एंड स्टूडेंट क्वालिटी को बोलेंगे एक्लेयर्स. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम कितने बच्चों के पास 5 के 5 चॉकलेट हो सकते हैं. ठीक है, अभी आप बताओ, नॉर्थ में टोटल 40 बच्चे हैं. 40 बच्चे में 15 बच्चों के पास डेयरी मिल्क है, 11 बच्चों के पास मंच है, 17 बच्चों के पास पर्क है, 19 बच्चों के पास 5 स्टार है, 22 बच्चों के पास एक्लेयर्स है. मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं इनके पास पांचों चॉकलेट हो? नॉर्थ में केवल 11 बच्चे हो सकते हैं ना. 11 बच्चे हो सकते हैं. लक्ष्मी सा आपके आंसर का वेट कर रहा हूं केवल, बाकी सबने आंसर दे दिया. 11 बच्चे हो सकते हैं जिनके पास मंच भी हो, डेयरी मिल्क भी हो, उन्हीं 11 के पास पर्क भी है, 5 स्टार भी है, क्लियर्स भी है. करेक्ट. सो मैक्सिमम 11 हो सकते हैं. अच्छा हम 12 क्यों नहीं कर सकते? 12 बच्चों के पास बाकी का चॉकलेट तो होगा लेकिन मंच नहीं है. 12 बच्चों के पास, 12 बच्चों के पास बाकी का चॉकलेट तो है लेकिन मंच नहीं है ना. बोलो यस सर. सिमिलरली साउथ से मैक्सिमम कितने बच्चे आ जाएंगे बेटा? 16 बच्चे आ जाएंगे.
ईस्ट से कितने आ जाएंगे छोटू? 8 बच्चे आ जाएंगे। और वेस्ट से कितने बच्चे हो जाएंगे? 13 बच्चे हो जाएंगे। टोटल कितने बच्चे हो गए जिनके पास 5 चॉकलेट हो सकते हैं बेटा? ऐड कर दो 27 फ्रॉम साउथ 14। ओके ये साउथ से 14 है, माय बैड। अरे यार सर क्या कर रहे हो सर, बोल रहे हो कुछ लिख रहे हो कुछ। ठीक है, दिस गिव्स मी 25 33 46। So answer to the first question was 46. बोलो yes sir. Answer to the first question was 46. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। At least how many business schools surveyed have the minimum basic requirement in both parameters, placement and faculty? I don't think this question is complete. Let me check the complete question. No, it's complete. It's complete. ठीक है, at least how many fulfill है ये fulfill लिखा है, the question is complete. 51. ध्यान देना बच्चों, ठीक है? इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं सॉल्व करके रख लो साथ में, ठीक है? इट इज नॉट 51। इट इज नॉट 51। अच्छा आप लोग विनीत एंड लेखना, आप लोग एटलीस्ट का आंसर दे रहे हो कि एट मोस्ट का आंसर दे रहे हो? ध्यान दो तो एक बार, आप लोग एटलीस्ट का आंसर दे रहे हो या एटमोस्ट का आंसर दे रहे हो? गुंजन बेटा अगेन सेम, आप आपने एटलीस्ट का आंसर दिया या एटमोस्ट का आंसर देने की कोशिश करिए, हालांकि वो भी आपका रॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन में कॉलेजेस ऐसे ऐसे बच्चों को मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है? ध्यान दो बच्चों, अटेम्प्ट करना है या आपको टाइम चाहिए? अटेम्प्ट करना है या टाइम चाहिए? देखो पहले तो वी आर इंटरेस्टेड इन प्लेसमेंट्स एंड फैकल्टी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को माइनस करो, कोर्स कंटेंट और स्टूडेंट क्वालिटी, इनका कोई काम नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि अब हम क्या प्लेसमेंट को बोल देंगे? डेयरी मिल्क। फैकल्टी को बोल देंगे पर्क। नहीं लिखना, टू इज नॉट राइट आंसर। हम प्लेसमेंट को बोल देंगे डेयरी मिल्क, फैकल्टी को बोल देंगे पर्क। अब आपको ऐसे बच्चों को मिनिमाइज करना है जिनके पास दोनों भी चॉकलेट हो, जिनके पास दोनों भी चॉकलेट हो, ऐसे बच्चों को मिनिमाइज करना है। बोलो यस सर, क्वेश्चन समझा? आपको ऐसे बच्चों को मिनिमाइज करना है जिनके पास दोनों भी चॉकलेट हो, ठीक है? अब देखो नॉर्थ में टोटल 40 बच्चे हैं, दिस इज 40, दिस इज 40 बच्चे बोल देंगे। 40 बच्चों में 15 बच्चों के पास डेयरी मिल्क है, 11 बच्चों के पास पर्क है। तो देखो 40 बच्चों में 15 के पास डेयरी मिल्क है, 11 के पास पर्क है। So can they be completely different set of students?
कैन दे बी कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स? हो सकता है ना, यहाँ से 0 मिल सकता है आपको, हो सकता है 0 बच्चे हो जिनके पास दोनों भी है, मिनिमाइज करना था। हम बोल सकते हैं ये 15 बच्चे अलग है और ये 11 बच्चे अलग है, बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास टोटल 40 बच्चे थे। करेक्ट? यस लिखना, यस। अब साउथ में आ जाओ, साउथ में टोटल 50 बच्चे हैं और 21 बच्चों के पास डेयरी मिल्क है, 14 बच्चों के पास पर्क है। आई कैन से ये भी, यहां भी 0 पॉसिबल है। ये 21 डिफरेंट बच्चे, ये 14 डिफरेंट बच्चे, टोटल 50 बच्चे के ऑप्शन, टोटल 50 बच्चों का ऑप्शन है मेरे पास। करेक्ट? ईस्ट में आ जाओ, ईस्ट में देखो, अगर मैंने 0 असाइन किया, मतलब ये 13 डिफरेंट बच्चे, ये 14 डिफरेंट बच्चे, तो टोटल 27 बच्चे होने चाहिए थे कम से कम, बट वी हैव हाउ मेनी, 25 स्टूडेंट्स। सो 2 बच्चों को ओवरलैप करना पड़ेगा ना, 2 बच्चों को देना ही पड़ेगा। यस और नो? ये 13 बच्चों के पास डेयरी मिल्क दे दो और बाकी 12 बच्चों के पास पर्क दे दो, बच जाएंगे 2 चॉकलेट, वो वापस डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। यहां से आपको 2 मिल जाएगा, यहां से आपको 2 मिल जाएगा। बोलो यस सर। सिमिलरली ये 18 और ये 13 कंप्लीटली डिफरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि द सम हैज टू बी 31 एंड वी हैव 30। सो एक कॉमन डालना ही पड़ेगा, एक बच्चे के पास दोनों डालना ही पड़ेगा। लक्ष्मी सा, आर यू गेटिंग दिस? एवरीबडी, इज एवरीबडी गेटिंग दिस? So there would be at least 3 students, 0, 0, 2 and 1. There would be at least 3 students which will be having both. Highest was 51. Highest, there were 51 students who were having both of the chocolates, but वो highest का था। लास्ट जो अप्रोच था वो हाईएस्ट के लिए था ना छोटू? आप ऐसे तो नहीं करोगे आगे, आप ऐसे तो आगे नहीं करोगे। हाईएस्ट के लिए था वो अप्रोच और ये मिनिमम के लिए है अप्रोच। चलो आगे बढ़े, शैल वी मूव अहेड? आ जाओ थर्ड। All business schools which satisfy the minimum basic requirement in at least 3 of the 5 parameters are to be considered for all India ranking. At most, how many of the business schools would be considered for the ranking purposes? जिस भी कॉलेज के पास, जिस भी बच्चे के पास 3 चॉकलेट है, वो बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है? आप मैक्सिमम कितने बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन ये है। जिस भी बच्चे के पास 3 चॉकलेट है वो बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। आप मैक्सिमम कितने बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, चलो आंसर दिस। चलो 68 लिखना से 68 इज नॉट राइट आंसर लिखना। 68 इज नॉट राइट आंसर। Vineet says 71.
देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान दो। नाइदर 68 नॉर 71 इज द आंसर। इसको समझने के लिए ना आप एक छोटी सी चीज समझो। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऐसा बोलते हैं डेयरी मिल्क और ये हो गया पर्क, मंच, 5 स्टार, मेलोडी। ठीक है, आपके पास कितने डेयरी मिल्क के चॉकलेट है? 1, 2, 3, 4, 5। कितने पर्क है? 1, 2, 3, 4। कितने मंच है? 3 मंच है। ओके। और कितने 5 स्टार है? 2 5 स्टार है। और कितने मेलोडी है? 1 मेलोडी है। ठीक है। अब आप आपको 3 चॉकलेट देने हैं एक बच्चे को, 3 डिफरेंट चॉकलेट, 3 डिफरेंट चॉकलेट। आप कितने बच्चों को दे सकते हो 3 चॉकलेट? 3 डिफरेंट चॉकलेट। आप बताओ, आप कितने बच्चों को 3 डिफरेंट चॉकलेट दे सकते हो? बताओ, कितने बच्चों को 3 डिफरेंट चॉकलेट दे सकते हो? आपके पास 5 डेयरी मिल्क है, 4 पर्क है, 3 मंच है, 2 5 स्टार है, 1 मेलोडी है। आप कितने बच्चों को 3 डिफरेंट चॉकलेट दे सकते हो? कितने बच्चों को? देखो, स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूट किया तो पहले बच्चे को हमने ये 3 चॉकलेट दे दिए, ठीक है। या दूसरे बच्चे को हमने 1, 2, 3 ये 3 चॉकलेट दे दिए, 2 बच्चे हो गए। तीसरे बच्चे को हमने 1, 2, 3 ये 3 चॉकलेट दे दिए, 3 बच्चे हो गए। चौथे बच्चे को हमने 1, 2, 3 चॉकलेट दे दिए, 4 बच्चे हो गए। पांचवें बच्चे को हमने 1, 2 और 3 चॉकलेट दे दिए, 5 बच्चे हो गए। बोलो यस सर। सो हमने ये कैसे किया? स्मार्टली करने से हो जाता है। अगर आप ब्रॉडली अगर देखोगे तो 5, 4, 3, 2 एंड 1 ऐड कर दो, 15 हो जाता है। 15 को 5 से डिवाइड कर दो। सॉरी, 3 चॉकलेट देने थे ना, 15 चॉकलेट है टोटल, 3 3 चॉकलेट तो 5। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको आप समझा हमने ये कैसे निकाला? अब बड़े क्वेश्चंस होंगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप ये चीज ध्यान में रख सकते हो कि टोटल 15 चॉकलेट थे, 3 3 चॉकलेट बांटने थे, तो हम स्मार्टली कर सकते हैं। ठीक है, आपको वही काम इधर करना था। ठीक है, आपको भी 3 देने हैं। यहाँ टोटल कितने चॉकलेट है? सबका पहले टोटल। नॉर्थ में टोटल कितने चॉकलेट है? टोटल है 26, 43, सॉरी 26, 43, 65, 65 एंड 19, 84 चॉकलेट है नॉर्थ में टोटल, 84। सिमिलरली साउथ में कितने चॉकलेट है बेटा? 35, 51, 51, 74, 74, 102 चॉकलेट है साउथ में। ठीक है, 13, 27, 35, 50, 60 चॉकलेट है ईस्ट में। और 18 प्लस 13 इज 31, 31 17 इज 48, 48 प्लस 14 इज 62। यहाँ पर 80 चॉकलेट है। अब आप 3 3 चॉकलेट कितने लोगों को दे सकते हो? 3 से डिवाइड कर दो। 3 3 चॉकलेट कितने लोगों को दे सकते हो? यहाँ पर 28 लोगों को दे सकते हो, यहाँ पर 34 लोगों को दे सकते हो, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 26। 27th का ही नहीं होगा ना? Add them up. 3 2 5 2 7 2 9 98, 108. There could be 108 people who can have 3 different chocolates, hence 3 different parameters. Am I clear with this? Am I clear with this? ठीक है। और देखो, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हैज मल्टीपल गुड एस्पेक्ट्स। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना। ओके बेटा, बोलो यस सर, यस सर। Shall we move ahead to the next question? आ जाओ। What is the least number of business schools surveyed in the North region satisfying the minimum basic requirement in a minimum of 2 of 5 parameters? अब इसका क्या अप्रोच होगा? इसका क्या अप्रोच होगा? देखो, ट्राई करो।
यस लक्ष्मीशा, मिनिमम 2 देना जरूरी है, 2 से ज्यादा भी दे सकते हैं। मिनिमम 2 देना जरूरी है, 2 से ज्यादा दे सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं केवल नॉर्थ की, हम बात कर रहे हैं केवल नॉर्थ की। लेखना छोटू, पहले तो ध्यान दो क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसा एरर मत करो बेटा। क्वेश्चन है नंबर ऑफ बिजनेस स्कूल्स इन नॉर्थ रीजन, केवल नॉर्थ रीजन में। तो नॉर्थ रीजन में टोटल 40 स्कूल्स ही है, आप 107 आंसर कैसे दे सकते हो? आंसर शुड बी आइदर 40 और लेस देन 40। नंबर ऑफ बिजनेस स्कूल्स इन नॉर्थ इज 40 ना। हाउ इट कुड बी मोर देन 40? आंसर कुड बी मोर देन 40, पॉसिबल है क्या कभी? इसके ये 107 रॉन्ग है, ये बताने के लिए तो सॉल्व करना भी जरूरी नहीं है। Are you getting what I'm trying to say? Chalo, now answer this question. Got it, na? Answer this question. Gunjan, yes, there is an upcoming plus course. आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, विद इन 2-3 days अपडेट आ जाएगा बेटा। My course is starting from 6th. Yeah, my course is starting from 6th. Yes, it's for 21 itself. जो 6 से शुरू हो रहा है is for 21 itself. चलो, shall we attempt this set? Shall we attempt this set? Is this question 15, 11, 17, 19, 22, 15, 11, 17, 19, 22, 26 हो गया, 1743 हो गया, 1962 हो गया, 84 हो गया। Guys, shall we? Shubhadeep, is this you we had word yesterday? If I'm not wrong. हाँ, we had word yesterday ना, या नहीं? On call? नहीं, अरे यार तेरा। Okay. So there is one Subhadeep who attends me on YouTube. There is one who attends me on Plus here, and there is one who has called me. All of three are different Subhadeeps. And the funny thing is कि मैंने Subhadeep नाम पहले कभी नहीं सुना, और अभी 3 Subhadeep एक साथ।
मैंने कल भी बोला कि बेटा यू आर देयर, ही सेड नो, यू आर सेइंग नो। चलो शैल वी? सुभादी, अच्छा, इट्स अ बंगाली नेम ना, आई बिलीव सुभादी। ओके, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में आज तक कोई नहीं आया नेम सुभादी। चलो शैल वी? What is the least number of business schools in the north region which satisfy the minimum requirement of minimum 2 of 5 parameters? Okay. Nice. अब इस क्वेश्चन को हमारे तरीके से डील करते हैं। ऐसा है कि ये चॉकलेट है, ठीक है, ये चॉकलेट है, डेयरी मिल्क हो गया, पर्क हो गया, मंच हो गया, ठीक है, और ये 5 स्टार हो गया, और ये मेलोडी हो गया, ठीक है। नॉर्थ की बात कर रहे हैं, नॉर्थ में देयर आर 40 स्टूडेंट्स, लेट अस से दीस आर माय 40 स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या मिनिमाइज करना है? लीस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स satisfying the minimum criteria of 2 of the 5 parameters, ठीक है। मुझे ना 5 चॉकलेट है, ठीक है, मुझे ब्रेक लाइंस, हाँ ये है ना ब्रेक लाइंस है, ठीक है, ये ब्रेक लाइंस है, ठीक है। दीज आर 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आई वांट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास 2 चॉकलेट हो। आई वांट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास ऑफ अ मिनिमम ऑफ 2 ऑफ द 5 पैरामीटर्स, ठीक है। तो 2 चॉकलेट वालों को मिनिमाइज करना है, ओके, वेरी गुड। एटलीस्ट 2 वालों को, एटलीस्ट 2 वालों को मिनिमाइज करना है, ठीक है। मतलब मुझे क्या चाहिए? 2 वाले नहीं चाहिए, 3 वाले नहीं चाहिए, 4 वाले नहीं चाहिए, 5 वाले नहीं चाहिए, आई डोंट वांट देम, मुझे मिनिमाइज करना है, ठीक है। हाउ मेनी चॉकलेट्स डू वी हैव? हाउ मेनी चॉकलेट्स डू वी हैव? वी हैव इन ऑल 84 चॉकलेट्स, ठीक है। मुझे और मुझे क्या ट्राई करना है? 2 या 2 से ज्यादा वाले मिनिमाइज हो जाए। इन ऑल दीज आर 40 स्टूडेंट्स, इन ऑल दीज आर 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो, एंड आई हैव 84 चॉकलेट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 40 स्टूडेंट्स, फाइन। अच्छा बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबको एक एक देंगे, बोलो यस सर, सबको एक एक देंगे ना? Still all of them are having 1 chocolates, all of them are part of my answer, ठीक है, all of them are part of my answer। चलो, अब देखो, अब मैं जिसको, अब हाउ मेनी चॉकलेट्स वी आर लेफ्ट विथ? अब मैंने जिसको भी चॉकलेट दिया, अच्छा, मुझे 2 या 2 से ज्यादा वालों को मिनिमाइज करने हैं। अब मैंने जिसको भी चॉकलेट दिया, जिसको भी चॉकलेट दिया, उसके पास 2 चॉकलेट हो जाएंगे मिनिमम, एंड दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट विल बी माय आंसर, यस और नो? अब मैंने जिसको भी चॉकलेट दिया, आई एम लेफ्ट विथ 44 चॉकलेट्स। अब मैंने किसी को एक भी चॉकलेट दिया, so that student will have at least 2 chocolate and that student will be part of my answer। और ऐसे स्टूडेंट मुझे मिनिमाइज करने हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे स्टूडेंट मुझे मिनिमाइज करने हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? 4-4 चॉकलेट देने चाहिए। अब मैं एक एक चॉकलेट देके मैं सारे बच्चों तक पहुंच सकता था, but then all of them would be my answer because all of them are having at least 2 chocolate, and I want to minimize those number of students. I have to minimize those number of students. So instead of giving them 1-1, I should give them 4-4. In this way I can reach to 11 more students.
सो मेरे पास सिनेरियो क्या हो गया, 11 स्टूडेंट्स आर हैविंग 5 चॉकलेट्स and remaining 29 students are having 1 chocolate. Yes or no? 11 students are having 5 chocolates and 29 students are having 1 chocolate. Correct. So my answer would be 11. There could be at least 11 students who can have at least 2 chocolates. There are at least 11 students who are having at least 2 chocolates. Think of it. नहीं समझा तो do let me know. I'll explain again. अगर नहीं समझ रहा तो do let me know. I'll explain this again. देखो टोटल कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। बार ग्राफ से इसको कैसे करेंगे, बार ग्राफ से पहले तो बार ड्रॉ क्यों करना, लेकिन अगर हाँ लाइक बार ग्राफ वो समझ रहा हूं मैं, लेकिन बार ग्राफ ड्रॉ क्यों करना, और बार ग्राफ से इसको कैसे करेंगे, बार ग्राफ ड्रॉ, बार ग्राफ पहले ड्रॉ क्या होगा इसमें, बार ग्राफ क्या ड्रॉ होगा, बार ग्राफ क्या ड्रॉ होगा। नॉर्थ में यू हैव 40 एंड देन प्लेसमेंट्स है, ये इसका बार ग्राफ क्या ड्रॉ करेंगे हम, आई एम नॉट गेटिंग इट कि इसमें बार ग्राफ क्या ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो there are 40 students and there are 84 chocolates, there are 40 students, there are 84 chocolates। मुझे एटलीस्ट 2 वालों को मिनिमाइज करना है, एटलीस्ट 2 वालों को मिनिमाइज करना है, तो पहले सबको एक एक चॉकलेट दे दिया हमने। आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 40 चॉकलेट्स, आई एम लेफ्ट विद 44 चॉकलेट्स। अब मैं जिसको भी एक भी चॉकलेट देगा, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज पार्ट ऑफ माय आंसर, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज पार्ट ऑफ माय आंसर। ठीक है, इसको मैं एक चॉकलेट दूं तो भी ये आंसर का पार्ट हो जाएगा, इसको 2 चॉकलेट दूं तो भी आंसर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आई हैव 44 चॉकलेट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इग्नोर इट शुभादीप, like ignore it as of now. I'm not aware of that, so let's ignore it। चलो, मैंने बार ग्राफ से कभी इस क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए नहीं देखा। ठीक है, एक बार आपके बोलने पर मैं लेक्चर के बाद खुद ट्राई करूंगा पहले कि बार ग्राफ से कैसे वर्क करता है, एंड देन आई कैन मेक सम स्टेटमेंट, अगर सॉल्व होता होगा तो आई विल फिगर इट आउट लाइक रियल सून। ठीक है, अभी आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है उसमें स्ट्रगल करने का। हालांकि आपने जो लिखा है ना, आई विल थिंक ऑन दैट, लाइक सपोज फ्रॉम 1 to 40 स्टूडेंट, रोल नंबर 115 कॉल प्लेसमेंट्स। हाँ, थोड़ा मुझे आइडिया लग रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेट मी डिग इट अ लिटिल डीप। ठीक है, चलो, सो वी आर लेफ्ट विद 44 चॉकलेट्स, एंड अब मैंने किसी को भी एक भी चॉकलेट दिया, दैट स्टूडेंट वुड बी पार्ट ऑफ माय आंसर। मुझे स्टूडेंट्स को मिनिमाइज करने हैं, मैं क्या कर सकता था, हर स्टूडेंट को एक एक चॉकलेट दे सकता था, देन ऑल ऑफ देम वुड हैव बीन माय आंसर। मैक्सिमाइज हो जाते मेरे स्टूडेंट्स, मुझे मिनिमाइज करना था, तो मैं सबको 4-4 चॉकलेट दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम दे कैन हैव 5 चॉकलेट्स। सो 4-4 चॉकलेट दे के आई कैन रीच टू 11 such students। So total there would be 11 students having 5 chocolates, and total there would be 29 students having 1 chocolate। Answer to this question was 11। At least 2 chocolates कितने बच्चों के पास है, 11 बच्चों के पास है। ठीक है, चलो एक बार आई डू रिकमेंड कि जो भी 3 सेट हमने किए आप एक बार वापस ट्राई कर लेना, दे विल डेफिनेटली हेल्प। एक सेट और है, ये सेट आपका होमवर्क हो जाएगा। We'll meet tomorrow again at 7 a.m. and maybe today at no, not today, tomorrow at 7 a.m. और फिर हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो guys, you can also join my channel। Previous slide, you want a screenshot, take this। If you want a screenshot, take this। ठीक है, and I'll definitely give a thought over your method immediately after this session। ठीक है,
and you guys can reach me out if you want to discuss it. You guys can reach me out on this number. This is my WhatsApp number as well as calling ka number. You guys can reach me out. I'll definitely give a thought. और हालांकि थीम जो है ना सुभारी, मुझे लगता है कि थीम सेम ही होगा, क्रक्स सेम ही होगा। जो फील आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन आपका थोड़ा डिफरेंट आएगा, क्रक्स मुझे लगता है सेम ही होगा। इफ देर आर एट मोस्ट 2, देखो एट मोस्ट 2 तो हो ही नहीं सकता। एट मोस्ट 2 देखो, अच्छा एटमोस्ट 2 को मिनिमाइज करना है ना, एटमोस्ट 2 को मिनिमाइज करना था। अच्छा देखो, हाँ हाँ, ब्रॉड सेंस आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था इसका? एक क्वेश्चन आया है, किसका है, लेखना का। अगर सर एटमोस्ट 2 होता तो हम क्या करते? देखो क्वेश्चन अगर लिखना का है एटमोस्ट 2 को मिनिमाइज करना होता तो यही क्वेश्चन है ना लिखना डियर। एटमोस्ट 2 वालों को मिनिमाइज करते, ज्यादा से ज्यादा 2 वालों को मिनिमाइज करते, ठीक है। मतलब हमें क्या नहीं चाहिए, हमें 0 नहीं चाहिए, हमें 1 नहीं चाहिए, हमें 2 नहीं चाहिए किसी के पास। हम 3 असाइन करते। फिर हम क्या असाइन करते? हम 3 असाइन करते। हम 3 को असाइन करते। हमें 0 नहीं चाहिए, हमें 1 नहीं चाहिए, हमें 2 नहीं चाहिए। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 2 से ज्यादा देना है, तो हम सबको 3 असाइन करते। इन दिस वे वी कुड हैव रीच्ड 28 स्टूडेंट्स। आपका आंसर हो जाता 12। आपका आंसर हो जाता लिखना 12। समझा तो बोलो, नहीं तो आई विल एक्सप्लेन। आपका आंसर हो जाता 12। एटमोस्ट 2 वालों को अगर मिनिमाइज करना है तो फिर 2 से ज्यादा वालों को मैक्सिमाइज करो। तो आप बच्चे को या तो 3 चॉकलेट दो, या तो 4 चॉकलेट दो, या तो 5 चॉकलेट दो। सिंस मुझे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए तो मैं 3 चॉकलेट दूंगा। एम आई राइट? मुझे अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए तो मैं 3 चॉकलेट दूंगा। तो 3 चॉकलेट 84 स्टूडेंट्स, आई कैन रीच आउट टू 28 स्टूडेंट्स। और 12 बच्चों को एटमोस्ट 2 मिनिमम हो जाएंगे वो। सो ये काफी सिंपल मेथड है। जब तक आपको समझ नहीं आता है तो समझ आ गया, उसके बाद जब तक समझ नहीं आता इट सीम्स लिटिल ट्रिकियर, बट एक बार समझ में आ गया तो इट इज वेरी सिंपल। चलो, एम आई क्लियर विद दिस? ओके गाइस, तो दिस पर्टिकुलर सेट इज योर होमवर्क। मैं फ्लैश कर दे रहा हूँ 5 सेकंड्स के लिए। यू गाइस कैन ट्राई दिस। नेक्स्ट सेशन जब शुरू करेंगे तो भी मैं आपको 5 मिनट दूंगा सॉल्व करने के लिए, बट अगर आपको घर में ट्राई करना है तो यू गाइस कैन ट्राई दिस। टुमारो 7 AM, अगर कल नहीं आया तो फिर डे आफ्टर टुमारो 7 AM तो पक्का है, ठीक है। बट 7 AM ही पॉसिबल है अभी 2-3 दिन। चलो चलो गाइस, तो विल स्टॉप फॉर द डे एंड विल मीट अगेन। जब भी नेक्स्ट क्लास हो चैनल ज्वाइन कर लो, आई विल शेयर द लिंक।